Hi everyone, it's me Manu Ishu. Welcome to my channel. Um, in this video, we will cover suspense account question from BPP exam kit of F3. So actually, one of my viewer, she texted me personally that she wants a video for the suspense account from BPP kit. For her, I am making this video. So if you are watching my video for the first time, please do subscribe my channel and like it and share among your friends so that they can also take the benefit. And most of the existing viewer also haven't subscribed to my channel. Please guys, subscribe. Okay, so question number, let's move to question number is 18.1 to 18.2. Okay, when Q trial balance failed to agree, suspense account was opened for the difference. Trial balance total where debit and credit. Okay, the company does not have control account for its receivable and payable ledger. Agar in the question it has been mentioned that company is maintaining the control accounts. In that case, if the anything's given in the question related to the individual account, you can easily omit those things because company is maintaining the control account. Okay, if company if the question has been clearly told that it doesn't maintain the control account as in the question given here, so in this case you have to look even into the individual account as well. So be carefully uh, with this thing, with this kind of things. Okay, so first okay, trial balance let's made a trial balance user. So question number 18.1, I'm doing this. Okay, so trial balance. Okay, trial balance. So in debit side we are having 864390 and in credit side we are having 860930. So what is the difference between these two amount? So difference is, just wait, I need to get my calculator. 864390 minus 860930. So difference is of 3460. So on credit side, so suspense account will be open on the credit side, suspense with a suspense name 3460. Okay, so now total will be balance in the trial balance. Okay, so now अब suspense account लेजर खोलेंगे. Suspense. Okay, so it is having the balance brought forward 3460. Okay, so now let's adjust the following option either. In recording an issue of share at a par and cash received 3330 was credited to ordinary share capital account as 330000. Okay, so let this be this account here be, and we will make new, just wait, we will make a 3 column. Okay, we will make a 3 column, 1 for to do, did do, should do. Okay, so for first option let's do should do entry first, and here we will do did do, and here to do. Okay, in should do, in first case we are recording, एक second. Okay, what the hell. Okay, so in recording issue of share at a par, cash received 3330 was credited to ordinary share capital account as a 330000. Okay, so what the entry will be? Cash debit and share capital credit with amount 333123, and here also amount will be same 333123. Okay, so but what we did the correct entry in the cash account debit with 333123, and but what we did in share capital account, we credit with amount
330,123. Here debit and credit are not equal, so we need, now we have to make these two equal. And what is the difference between these two is of 3000. So suspense account credit with 3000, then we will have the debit and credit both balance. So now in to do entry, what we will do, here the suspense account is on the credit side. Now we will do the suspense debit with amount 3000 and now what should have on the credit side, the share capital. We need to increase the share capital with the amount 3000 so that the debit and credit will be equal, right? So in credit side we will have a share capital of 3000. So okay, so in suspense account is on the debit side. So in suspense account we will keep this amount with the name of share capital here. Let me make this bold. So share capital here will be 3000 because it is on the credit side, debit side. So in suspense ledger we will keep this 3000 amount on a debit side with the name of share capital. So I did here 3000. Okay, so now second error is what, a cash of 2800 paid to plant repairs was correctly accounted for in the cash book but was credited on the plant asset account. Okay, so cash paid for plant repair is our expense, right? So it will be on the debit side, amount is 2800, and cash here is outgoing, it means asset is decreasing, so it will be on the credit side, cash credit with amount 2800. Okay, this is our should do entry. Should do means this is our actual entry to be done. So but what we did, cash 2800 plant repair was correctly accounted for the cash book. With in cash book we did the correct entry, but what we did, just we credit the plant asset account instead of plant repairs account to be debited. So plant assets account credit with amount 2800. So now there is nothing on the debit side, so here it will be suspense account. जहाँ पे कमियाँ होगी, जहाँ पे लैकनेस होगा, मतलब वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आना है. लाइक इन द above case there is credit side is falling short of amount 3000, so we had opened the suspense account on the credit side. Here the debit side is falling with amount 2800, so no, with double amount 5600, because दोनों आपने क्रेडिट साइड में एंट्री किया है, दोनों क्रेडिट साइड में एंट्री किया, डेबिट साइड में उतना से लैकनेस होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा. सस्पेंस अकाउंट विल बी ऑन द डेबिट साइड. अब नाउ टू करेक्ट दिस एंट्री व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट वी हैव टू here the suspense account is on the debit side. Now we will make it credit, suspense credit with amount 5600, and on credits debit side we have mistakenly credited the plant asset account. So now we have to correct this entry, so we will do plant asset debit with amount 2800, and we have to debit also plant repairs on debit side, so amount 2800. So now suspense account is on the credit side. In suspense account ledger we will go on the credit side, but we will mention the name of plant repairs and plant assets account. Okay, so here सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट साइड में प्लांट रिपेयर के नाम से प्लांट रिपेयर्स आपका आएगा 2800 एंड प्लांट एसेट 2800. बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे हमारा सस्पेंस तो क्रेडिट में है, एंड बट वी आर हैविंग द टू एंट्री ऑन द डेबिट साइड. इन दोनों के नाम से मैंने सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दिया है. ये रहा आपका, ये पोर्शन नहीं है, ये आपका, ठीक है, इतना ही.
सो नाउ अब उसके बाद थर्ड क्या कहता है, पिटी कैश बुक बैलेंस 500 हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से ओमिट हो गई है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से, तो मीन्स पिटी कैश बुक हमारा डेबिट होना चाहिए था, है कि नहीं। तो एक मिनट, इसका ओरिजिनल एंट्री ये होता है, पिटी कैश आपका डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। तो अमाउंट कितना है 500। कैश तो आपने बराबर नोट डाउन किया ट्रायल बैलेंस में, बट व्हाट वी डिड, यू फॉरगेट टू make a entry of petty cash on the trial balance. You have completely omitted these transactions. So here on debit side it will be suspense account debit and 500, and because you have omitted the petty cash only, okay. So now here suspense account will be on cash entry was correct 500, and here आपका हो जाएगा suspense debit with credit with amount 500, and here on debit side we will have petty cash debit 500 ये हमारा original entry. So now suspense account is on the credit side. We will go on the credit side on suspense account ledger and put the amount 500 with the name of petty cash. So here आपका पिटी कैश यहाँ पे आएगा, पिटी कैश 500, ये लेज़र है हमारा सस्पेंस अकाउंट का. सो नाउ अब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, चेक ऑफ 78,400 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटर कार वाज डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट्स एज एस 87,400. ओके, सो लेट्स what is the correct entry for this transaction. We have purchased the motor car, so motor car will be debit with amount 78,400, and on credit side we will have a cash or whatever payables. So let's put the cash credit 78,400. But what you did in motor account, you debit with amount 87,400, but on credit side question have not mentioned anything about the credit side. You can assume that it has been correctly posted. Okay, so credit side you have made the correct entry 78400. So on credit side there is difference on in debit and credit, there is difference of amount. Just wait, 87,400 ये दोनों equal नहीं है. So what is difference is of 9,000. So suspense account will be on क्रेडिट साइड बिकॉज डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ रही है 9,000 का. सो हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में खोलेंगे. नाउ अब टू डू मतलब करेक्शन एंट्री, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में ले जाएंगे क्योंकि क्रेडिट में है. सस्पेंस हमारा हो जाएगा डेबिट विथ अमाउंट 9,000, एंड मोटर व्हीकल जिसको हम लोग ने बढ़ा दिया है, वी हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मोटर व्हीकल, सो नाउ वी हैव टू डिक्रीज. सो what we will do, just we will credit motor vehicles account with amount 9,000. So here suspense account is on debit side, so we will go on the suspense account ledger and keep this amount 9,000 with the name motor vehicle, motor car, whatever name given in the question, amount is 9,000. So last question, errors. A contract between the receivable ledger and payable ledger of 1,200 which should have been credited in the receivable ledger and debit in payable ledger were actually debit in the receivable ledger and credit in the payable ledgers. Okay, so okay, here contract entry क्या होती है, payables debit with amount, what is the amount 1,200, and receivable credit with amount 1,200. Okay, so what you did, just you have actually you have credited in receivable ledger and actually debited in the receivable ledger and credit. Okay, you have done opposite entry. You have just debited receivable ledger account debit with amount 1,200 and payables credit with amount 1,200. So now what we have to do is, पहले तो जर्नल एंट्री क्रेडिट कर लो, ठीक है, पेबल्स को डेबिट कर दो एंड रिसीवल को आप क्रेडिट कर दो. बट अमाउंट 1,200 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 2,400 होगा, क्योंकि आप लोग को पता है, मेरे पहले वीडियो भी देखो उसमें मैंने बोल रखा है, अगर सेम अकाउंट में प्लस के बदला माइनस करते हैं, फिर माइनस के बदला प्लस करते हैं, तब वहाँ पे डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगी. ठीक है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो. सपोज आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है,
अब आपने 5 रुपये का चॉकलेट खा लिया, ठीक है, तो 5 रुपये का चॉकलेट खाया तो 5 रुपये घटना चाहिए ना, आपने क्या किया, प्लस कर दिया वापस, तो वापस प्लस करोगे तो इट मीन्स आपके पास अब 15 हो गया है कि नहीं। अब उसको करेक्शन करने के लिए क्या आप वापस से 5 से घटाओगे, नहीं ना, आपको 10 से घटाना होगा, सो दैट यू हैव रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 5 इन योर हैंड। सो इस तरह ही अगर किसी में प्लस के मतलब माइनस, माइनस के मतलब प्लस करते हो तो वहाँ पे डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसीवेबल अकाउंट को घटाना था 1200 से, पर आपने उसको 1200 से बढ़ा दिया। अब इसको अगर 1200 से करेक्शन करते हो तो वो तो फिर तो ओरिजिनल बैलेंस पे आ जाएगा, तो उसको घटाना है ना हम लोग को 1200 से, इसलिए डबल अमाउंट का इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए 2400 यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। सो नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपका। विच ऑफ दिस एरर विल रिक्वायर एन एंट्री टू सस्पेंस अकाउंट टू करेक्ट देम। अब आप देखो किस किस में सस्पेंस अकाउंट खुला है, वही आंसर देना है। यहाँ से ना, ओके हाँ, तो फर्स्ट वाले में सस्पेंस अकाउंट खुल रही है, सेकेंड वाले में भी खुल रही है, थर्ड में भी खुल रही है, फोर्थ में भी, सिर्फ फिफ्थ वाले आपके उसमें एरर में नहीं खुल रही है। सो आंसर विल बी 1 2 3 4, ठीक है, डी ऑप्शन। What will the balance of suspense account after making the necessary entry to correct the error after affecting the suspense account? अब हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है, ये सस्पेंस ये लेज़र जो है ना इसको बैलेंस करना है। जस्ट वेट, इसको मैं फैला देती हूँ। ओके ओके, सो अब ना ये सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस करूँ। यहाँ पे टोटल क्या आ रही है आप देखो, 3460 प्लस 2800 प्लस 2800 एंड 500। सो और इधर कितना आएगी टोटल, इधर टोटल आएगी आपका डायरेक्ट 12000, और इधर आ रही है मेरा 9560। सो डिफरेंस क्या है, 9560 प्लस माइनस 1200। सो क्लोजिंग बैलेंस ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। हालांकि हम लोग सस्पेंस अकाउंट को जीरो मतलब ऐसे कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता, ये टेम्प्रोरी अकाउंट है, जितना जल्दी सेटल कर लो यू विल बी ऑन द गुड पोजीशन, ठीक है। बट ये क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स हमारा और एरर है और सस्पेंस अकाउंट कहीं पे खुलेगा, कहीं पे और गलतियाँ की है हम लोग ने, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये मत समझना कि क्लोजिंग बैलेंस है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कैरिंग फॉरवर्ड और ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, इस केस में नहीं होता है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के केस में। सो आपका 2440 आ रहा है बैलेंस, ठीक है। और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोजिंग इधर है तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 2440, ये हमारा फाइनल। अब आंसर क्या पूछ रहा है देखो कि व्हाट इज विल बैलेंस द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर बीइंग मेकिंग द नेसेसरी एंट्री टू द करेक्ट द एरर अफेक्टिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हमारा 2440 डेबिट साइड में आ रहा है, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18.3, A company trial balance total weight debit credit इतना suspense account was opened for the difference. Which of the following error would have the effect on reducing the difference when corrected? Okay, so okay, trial balance का पहले देखते हैं क्या क्या difference आ रही है। क्वेश्चन नंबर है 18.3। सो डेबिट साइड में कितना हमारा 387642 और क्रेडिट साइड में हमारा कितना है 379511, ठीक है। तो इट मीन्स क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रही है, सस्पेंस यहाँ खुलेगी, सस्पेंस। सो 81 सो 8131 से डिफरेंस आ रही है। सो सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो अब सस्पेंस अकाउंट लीडर खोलते हैं, सस्पेंस, ठीक है। ओके, अब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा हमारा क्रेडिट साइड में 8131 अमाउंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड हैव इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग द डिफरेंस व्हेन करेक्टेड। ओके, पिटी कैश बैलेंस ऑफ 500 हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ये सेम आपका इसके जैसा एंट्री होगा,
पेटी कैश का ये रहा। ये देखो ये सस्पेंस अकाउंट खुल रही है ना, एक मिनट इसको कॉपी करना पड़ेगा। ओके ये हमारा क्वेश्चन और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके एक सेकेंड गाइस, जस्ट वेट, मैं इसको यहाँ अच्छे से वो कर लूँ। ओके दिख रहा है ना अब देखो ओके तो अब पूछ ये ईरर को रिड्यूस करना है। ये सस्पेंस अकाउंट जो हमारा क्रेडिट साइड में आया हुआ है, वी नीड टू रिड्यूस दिस अमाउंट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा रिड्यूस करेगा सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुल रहा है, क्रेडिट साइड में है कि नहीं। ये हमारा टू डू वाला एंट्री है, ये हमारा ये शुड डू हो गई, एंड दिस वन इज डिड डू, एंड दिस वन इज टू डू, ठीक है। सो नाउ ये आपका अब क्रेडिट साइड में खुल रहा है, तो ये आपका और बैलेंस बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ा रहा है ना, तो ये गलत है। सो बी क्या बोल रहा है, 4000 रिसीव फॉर द रेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ऑफिस हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड डेबिटेड इन द रेंट अकाउंट। ओके तो यहाँ पे आप रेंट रिसीव कर रहे हो, इट मीन्स इनकम, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कैश डेबिट 4000 एंड रेंट इनकम क्रेडिट 4000 होगा, ठीक है। बट व्हाट यू डिड कैश बुक में करेक्ट एंट्री करा, यू डिड ए करेक्ट एंट्री इन द कैश बुक 4000, बट यू हैव मिस्टेकली डेबिटेड द रेंट अकाउंट विद सेम अमाउंट 4000। अब सस्पेंस कहाँ खुलेगा, आई मीन सस्पेंस डिफरेंस आ रही है ना डेबिट एंड क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट डालेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, अमाउंट 8000 हो जाएगा। अब हम सस्पेंस अकाउंट को डालेंगे डेबिट साइड में, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा उल्टा, ठीक 8000, एंड जो सही करने वाला एंट्री क्रेडिट साइड में रेंट आएगा क्रेडिट विथ अमाउंट 8000। अब सोच रहे हो कि रेंट तो 4000 था पर आपने 8000 क्यों ले लिया ऐसे करके, है ना। देखो क्योंकि हम लोग को रेंट में रेंटल इनकम को ऐड करना था क्रेडिट करके, पर हम लोगों ने डेबिट कर दिया, मीन्स घट गया। यहाँ पे रेंट इनकम डाल देती हूँ सो दैट यू वॉन्ट गेट कन्फ्यूज्ड। सो रेंट इनकम, इधर भी इनकम। तो अब आपका आपने डेबिट कर दिया तो वो 4000 रिड्यूस हो गया। अब वापस से हम लोग सिर्फ 4000 क्रेडिट करेंगे तो वो फिर से वो ओरिजिनल बैलेंस में आ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए 8000 करोगे तो वो मिस्टेक भी करेक्ट हो जाएगा और 4000 से हम लोग को इंक्रीज़ करना था वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में खुल रहा है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट की यहाँ पे लेजर अकाउंट डेबिट साइड में जाके रेंट के नाम पे, रेंट इनकम के नाम पे डाल देंगे 8000। अब देखो तो ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी भी देखते हैं। सो ऑप्शन सी, 3000 पेड फॉर रिपेयर्स टू प्लांट हैज़ बीन डेबिटेड टू प्लांट एसेट अकाउंट। ओके ये सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, ऊपर में था ना। तो प्लांट रिपेयर्स के लिए आपने 3000 पे किया, प्लांट रिपेयर्स इज योर एक्सपेंस, ओके। repairs debit is your expense, amount is 3000 and cash will be on the credit side because cash जा रहा है, so 3000 asset is decreasing. so now अब करेक्शन एंट्री क्या होगी ना, करेक्शन बोलिए। अब हम लोग ने क्या किया, 3000 को कैश में, कैश के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सो इट मीन्स यू एज्यूम कि ये करेक्ट एंट्री हुई है, ठीक है। अगर दूसरे पार्ट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, यू कैन एज्यूम दैट इट हैज़ बीन करेक्टली इंटर्ड। सो अब प्लांट को क्या किया आपने,
डेबिट किस में कर दिया, प्लांट एसेट में, प्लांट रिपेयर्स को प्लांट एसेट में, ठीक है, डेबिट विथ अमाउंट 3000। अब तो प्लांट एसेट तो बढ़ गया होगा, हालांकि एसेट बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, प्लांट अकाउंट, ये जो एसेट को डेबिट किया है उसको पहले क्रेडिट करना होगा, ठीक है। इस अकाउंट में एंट्री नहीं होने वाली थी पर हम लोग ने गलती से एंट्री किया, सो इसको करेक्शन करने के लिए वापस से क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। और डेबिट में क्या आना चाहिए, प्लांट हमारा रिपेयर्स, ठीक है, सो रिपेयर्स हो गया डेबिट अमाउंट 3000। ओके, सो आपका देखो तो अब यहाँ पे सस्पेंस खुला नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। एन इनवॉइस फॉर मिस्टर ए स्मिथ फॉर 400 हैज़ बीन पोस्टेड टू मिस्टर बी अकाउंट इन द ईयर। हालांकि देखो क्वेश्चन ने आपका ये नहीं बात किया कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करता है कि नहीं, सो यू कैन एज्यूम दैट कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेन द कंट्रोल अकाउंट इफ़ नथिंग हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, इफ़ गिवन तो यू कैन गो थ्रू इट। आपको मैंने बोल दिया कि अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपको जो भी इंडिविजुअल रिलेटेड से यहाँ पे दिया हुआ ना मिस्टर ए स्मिथ, इस टाइप के ट्रांजेक्शन ओमिट कर दोगे तब भी चलेगा। अगर बोल रहा है कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, देन वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस काइंड ऑफ अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एन इनवॉइस ऑफ मिस्टर ए स्मिथ 400 हैज़ बीन पोस्टेड टू एन मिस्टर बी स्मिथ इन सेल्स ईयर सॉरी। तो ये हमारा रिसीवल का है, ठीक है। रिसीवल में मिस्टर ए का नाम आएगा, डेबिट, ठीक है, एंड आपका सेल्स हुआ है, ये हो जाएगा क्रेडिट, अमाउंट है, ये इनवॉइस रेज हुआ, ये एक्चुअल एंट्री है 400, यहाँ पे भी आएगा 400, ठीक है। तो अब देखो आपने मिस्टर ए के बदला मिस्टर बी में एंट्री कर दिया, मिस्टर बी को बढ़ा दिया, मिस्टर बी का बिल फालतू में बढ़ गया, बेचारा वो परेशान होगा 400 का। और सेल्स तो करेक्ट है, दूसरे पार्ट के बारे में क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, यू कैन एज्यूम दैट इट हैज़ बीन करेक्टली पोस्टेड। सो नाउ करेक्शन एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए का अकाउंट बढ़ाना था हम लोग को, ना कि मिस्टर बी का। मिस्टर ए का डेबिट कर देंगे, मिस्टर ए डेबिट 400, एंड मिस्टर बी को वापस से घटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे सब रिसीवल इनसे लेना है, करेक्शन मीन्स ये करेंट एसेट के रूप में देख सकते हो, क्रेडिट 400। यहाँ पे भी हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो को रिव्यू करो और देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, आपको बस ईरर पता करना आना चाहिए कि जर्नल एंट्री आना चाहिए और कौन कौन सा ईरर है, क्या क्या कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो आना चाहिए, एंड आप सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। So 18.4, a trial balance extracted from sold record failed to agree and suspense account was open for difference. Okay, which of the following error would require an entry in a suspense account in correcting them? Okay, so वापस से to do should do हम लोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18.4। ओके, सो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सेल्स रिटर्न विल मिस्टेकली डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न की हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, यू मस्ट नो द जर्नल एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे ट्रांजेक्शन के लिए। आपको इवन फाइनल एग्जाम में भी 1-2 जर्नल एंट्री रहता है, या किसी को 4 भी पढ़ सकता है। सो जर्नल एंट्री अच्छे से सब कर देना, ठीक है। सेल्स रिटर्न का क्या होता है, सेल्स रिटर्न आपका होता है डेबिट, एंड क्रेडिट में क्या आएगा, रिसीवल कैश जो भी है वो आएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। बट व्हाट यू डिड, सेल्स रिटर्न हैव बीन मिस्टेकली डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया, डन, डेबिट, ठीक है। और दूसरे पार्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, सो यू कैन एज्यूम दैट इट हैज़ बीन करेक्टली पोस्टेड। ओके, अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न तो फालतू में डेबिट हुआ है कि नहीं, उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए था, तो इसको हम लोग पहले क्रेडिट करेंगे, वापस से उसका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट, एंड आप ऊपर में क्या आना चाहिए था, सेल्स रिटर्न, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट तो खुला ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। तो
तो उसके बाद में सस्पेंस अकाउंट पता है आपको कहाँ खुलेगा, जहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका डेबिट एंड क्रेडिट में मतलब जो ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट ही नहीं कर रहा ट्रांजेक्शन, उस पर आपका सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। अगर इवन आप मिस्टेक भी कर रहे हो ना तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है क्या, इसी वजह से आपका सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ये आपका 2 साइडेड ईरर हो गया, 1 साइडेड ईरर में आपका सस्पेंस अकाउंट खुलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो 2 नंबर क्या बोलता है, कैश रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट वाज करेक्टली इंटर इन द कैश बट डेबिटेड टू डिस्पोजल अकाउंट। ओके, डिस्पोजल का केस है, ठीक है। तो डिस्पोजल के केस में आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हो, तो कैश आपका डेबिट एंड डिस्पोजल को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। बट आपने क्या किया, कैश को तो डेबिट किया बट डिस्पोजल को भी आपने डेबिट कर दिया, डिस्पोजल को भी डेबिट कर दिया। अब करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्पोजल को हम लोग को नहीं, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुल गया, देखो दोनों डेबिट साइड में है ट्रांजेक्शन, सस्पेंस यहाँ पे खुला, क्रेडिट। अब हम लोग को क्या करना होगा, पहले सस्पेंस को करेंगे उल्टा, यानी डेबिट क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए था, डिस्पोजल क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे अमाउंट दिया होता ना तो आपका डबल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग को डिस्पोजल को क्रेडिट करना था, हम लोग ने डेबिट कर दिया, मतलब इसको प्लस करना था, इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब वापस से इसको इस फॉर्म में लाने के लिए डबल अमाउंट से इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ पे डबल अमाउंट होता है, अमाउंट तो हालांकि दिया नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये हो गया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुले तो एक ऑप्शन आया। लेट्स मूव टू द 3, ए बैलेंस ऑन रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे रेंट अकाउंट मतलब आप एक्सपेंस को एज्यूम करोगे, ठीक है। तो रेंट अकाउंट का बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस से ओमिट कर दिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से ओमिट किया होगा तो इट मीन्स वहाँ पे डेबिट साइड कम पड़ रहा होगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। रेंट एक्सपेंस कहाँ पे शो होता है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड से आपने ट्रायल रेंट अकाउंट हटा दिया तो वहाँ पे वहीं पे घट रहा होगा सस्पेंस अकाउंट, आई मीन सॉरी क्या बोल रही हूँ, रेंट अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट साइड आपका ट्रायल बैलेंस का जो भी अमाउंट हो वो आपका मतलब कम पड़ रहा होगा, तो आपका रेंट अकाउंट लाओगे डेबिट साइड में एंड सस्पेंस आपका आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये आपका करेक्शन एंट्री। अगर इसके थ्रू जाओगे तो आपका ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए था रेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ऐसे समझ सकते हो, ये समझने के लिए, ठीक है। पर आपने रेंट को उड़ा दिया तो सस्पेंस आ जाएगा वहाँ उसके जगह डेबिट, कैश को आपने सही मतलब करेक्ट एंट्री किया था तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस डेबिट में है तो इसको हम लोग क्रेडिट लेके आएंगे और इसकी जगह पे आना चाहिए था रेंट डेबिट, जो कि रेंट लेके आएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट ये भी खुल रहा है, इट मीन्स 2 3 हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखोगे ना आपका आंसर ऐसे पता चल गया, 2 3 आपका दिया हुआ है, ऑल 4 आइटम तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो ऐसे रिजेक्ट हो गया है, बाकी आपका गलत ही होगा। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुड टेकन फ्रॉम द इन्वेंट्री बाय द प्रोप्राइटर हैव बीन रिकॉर्डेड बाय क्रेडिटिंग ड्राइंग अकाउंट एंड डेबिटिंग परचेजिंग अकाउंट। अगर ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग आपका होगा डेबिट एंड परचेज क्रेडिट, ठीक है। पर आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब इसको करेक्शन करने के लिए वापस से ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला, इट मीन्स आपका 2 और 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, so let's move to the next question. 18.5, a suspense account was opened when trial balance failed to agree the following error were later discovered. What is the original balance on suspense account? ये कपला ने भी क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे जैसे याद आ रही है, मैंने किया है। ओके, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान देना, ओरिजिनल बैलेंस मीन्स ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो गैस बिल 420 हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द गैस अकाउंट एज 240, गैस बिल हमारा एक्सपेंस, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, गैस बिल आपका डेबिट कितना है अमाउंट 420 एंड कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड में 420। पर आपने क्या किया
कैश के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सो यू कैन एज्यूम कि इट हैज़ बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। एंड गैस अकाउंट में आपने लोचा किया है, गैस बिल को आपने बस डेबिट साइड में कितना दिखाया है 240। अब देखो आपका सस्पेंस खुल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो सस्पेंस यहाँ पे आ जाएगा, सस्पेंस डेबिट साइड में अमाउंट देख लो कितना से कम पड़ रहा है, सो 180 से कम पड़ रहा है, तो 180 आ जाएगा सस्पेंस डेबिट साइड में। अब करेक्शन एंट्री क्या होगा सस्पेंस डेबिट साइड में, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में रखेंगे। सस्पेंस आपका क्रेडिट 180 और डेबिट में हम लोग को गैस बिल इंक्रीज़ करना है क्योंकि हम लोग ने कम दिखाया हुआ है, तो गैस बिल आपका हो जाएगा डेबिट विद अमाउंट 180। ठीक है, अब इसको रखे रखो, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे तो पता चल जाएगा आपको ये चीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका, ए सेल्स इनवॉइस टू ए कस्टमर ऑफ 50 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल। सेल्स इनवॉइस फ्रॉम टू ए कस्टमर ऑफ 50, सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो, इट मीन्स रिसीवेबल बढ़ेगा डेबिट विथ अमाउंट 50 एंड सेल्स आपका होगा क्रेडिट विथ अमाउंट 50। बट आपने क्या किया, सेल्स इनवॉइस ऑफ कस्टमर 50 हैव बीन क्रेडिट टू सेल्स। ओके, तो आपने ये वाला पार्ट क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, इट मीन्स करेक्टली आपने रिकॉर्ड किया, रिसीवल को आपने भी उसको भी क्रेडिट कर दिया है। अब डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो सस्पेंस खुलेगा, अमाउंट हो जाएगा डबल 100। ठीक है, एंड अब इसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस को उल्टा कर दो, डेबिट में है तो अब क्रेडिट हो जाएगा 100 एंड आप क्या करो, रिसीवेबल को डेबिट करो विथ अमाउंट 100। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 100 जाएगा। अभी देखो यहाँ 50 आप बोल रहे हो 100 कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिसीवेबल बढ़ाना था, बट व्हाट वी डिड, हम लोग घटा दिए। अब डबल इम्पैक्ट पड़ा, प्लस के बदला माइनस कर दिया, तो अब मैंने बोला था अगर प्लस के बदला माइनस करें तो डबल अमाउंट से उसको करेक्शन करेंगे, इसलिए डबल अमाउंट किया यहाँ पे। ठीक है, सो लास्ट इंटरेस्ट रिसीव फॉर 70 हैज़ बीन इंटर्ड इन द बैंक अकाउंट ओनली। इंटरेस्ट रिसीव इनकम, सो बैंक हमारा बढ़ेगा, बैंक डेबिट विथ अमाउंट 70 एंड इंटरेस्ट रिसीव आपका क्रेडिट अमाउंट 70। बट आपने सिर्फ क्या किया, बैंक अकाउंट में सिर्फ रिकॉर्ड किया है और आपका डेबिट क्रेडिट साइड में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो सस्पेंस कहाँ बराबर करने के लिए कहाँ खुलेगा सस्पेंस, क्रेडिट साइड में। सस्पेंस आपका खुलेगा क्रेडिट में अमाउंट 70। अब इसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस क्रेडिट साइड में है, अब डेबिट साइड में सस्पेंस चल जाएगा, सस्पेंस आपका डेबिट विथ अमाउंट 70 और उसके जगह पे क्या आना चाहिए था, इंटरेस्ट रिसीव अमाउंट क्रेडिट विथ 70। ठीक है, ये आपका हो गया। अब लेजर बनाते हैं सस्पेंस का। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाते हैं, सस्पेंस। ठीक है, ओके, सो बैलेंस हम लोग को पूछ रहा है, ओपनिंग बैलेंस मतलब स्टार्ट में कितना बैलेंस था, वो एक स्पेस छोड़ देती हूँ। फर्स्ट वाला में देखो सस्पेंस अकाउंट किधर है आपका, ये एंट्री हम लोग को देखना है। ठीक है, ये वाली एंट्री हम लोग को देखना है, बोल्ड कर देनी, टू डू एंट्री देखना है, नॉट शुड डू। ठीक है, टू डू। ओके, तो हमारा सस्पेंस किधर है, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग गैस बिल के नाम से डालेंगे, गैस बिल आपका कितना आ जाएगा 180। ठीक है, और यहाँ पे सस्पेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, अगेन हम लोग रिसीवेबल के नाम से डालेंगे अमाउंट 100 एंड सस्पेंस यहाँ पे डेबिट साइड में, तो सस्पेंस यहाँ पे आ जाएगा, नाम रहेगा इंटरेस्ट या फिर बैंक जो भी कहो उसके नाम से अमाउंट 17। ठीक है, अब इसको टोटल करो, ये कितना आ रहा है 280। ठीक है, इधर भी 280 टोटल, इधर कम कितना पड़ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं पूछ रहा, ओपनिंग बैलेंस मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, तो कितना आ जाएगा 210, ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऐसे होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं पूछ रहा, ओपनिंग बैलेंस मतलब ये चीज़ होने से पहले हमारे सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना था, तो बैलेंस 210 था, 210 करके तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हमारा मतलब सेटल हो गया, कुछ बैलेंस नहीं रहा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरिजिनल बैलेंस क्या था, ये चीज़ ध्यान देना, ओरिजिनल बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, तो ये कहाँ पे 210 डेबिट साइड में, तो आंसर हो जाएगा 210 डेबिट साइड। ठीक है,
So question number 18.6, a company trial balance failed to agree that out of the balance difference is 25,000 being posted to the suspense account. A subsequently investigation revealed the difference was due to one side of entry of record of purchase of machinery for 25,000 by check failing to post in plant and machinery account. Which of the following journal entry would correct the error? Okay, so question number है हमारा 18.6. आपने क्या किया है, प्लांट परचेज किया है, ठीक है, मशीनरी परचेज किया है, तो मशीनरी आपका हो जाएगा डेबिट विथ अमाउंट 25,000 और यहाँ पे आ जाएगा कैश बैंक जो भी है क्या है चेक से पोस्ट किया है तो बैंक आ जाएगा, बैंक आपका क्रेडिट विथ अमाउंट 25,000. बट आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कुछ पोस्ट नहीं किया बट रिकॉर्ड. Subsequently, investigation revealed the difference was due to one-side entry of plant and purchase of plant machinery by check failing to post in the plant and machinery account. Plant machinery account में कुछ पोस्ट नहीं किया पर वहाँ बस बैंक वाले अकाउंट में आपने पोस्ट किया, मतलब डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे सस्पेंस खुलेगा डेबिट साइड में. टू मेक द डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल 25,000. अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस को हम उल्टा करेंगे पहले, सस्पेंस क्रेडिट एंड प्लांट एंड मशीनरी जो भी है वो हमारा हो जाएगा डेबिट. अब देखो आपका आंसर क्या है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट एंट्री हो गया, टू डू एंट्री, ये करेक्शन एंट्री है. क्वेश्चन ये आपका करेक्शन एंट्री पूछ रहा है. तो प्लांट मशीनरी एंड बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट नहीं, हम लोग को सस्पेंस अकाउंट आया हुआ, बैंक नहीं, तो ये हमारा ओरिजिनल हो गया, ये शुड डू एंट्री हो गया, ये गलत है. सस्पेंड टू प्लांट एंड मशीनरी ये आपका गलत है, ये भी. प्लांट एंड मशीनरी टू सस्पेंस, या ये हमारा करेक्ट आंसर है सी. यहाँ पे मैंने मशीनरी लिखा है, आप प्लांट भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई नो इश्यू, प्लांट एंड मशीनरी. ओके, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 18.7, ट्रायल बैलेंस ऑफ जेट फेल टू एग्री टोटल इज बीइंग डेबिट क्रेडिट. ओके, सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड द फॉलोइंग एरर वर फाउंड एंड करेक्टेड. व्हाट इज रिमेनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस आफ्टर द करेक्शन ऑफ द एरर हैज बीन मेड. ओके, अगेन सेम क्वेश्चन है, मैं कह रही हूँ ना, आप बस एरर फाइंड मतलब एरर कौन सा है वो फाइंड कर लो और जर्नल एंट्री आपको पता है, यू कैन डू दिस सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन वेरी इजीली. सो आपका कितना का डिफरेंस आ रहा है पहले वो देखो आप, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में 836,200 एंड क्रेडिट साइड में है 819,700, तो आपको डिफरेंस आ रहा है 16,500 का, ठीक है. तो ये आपका किस साइड आ रहा है, अभी देखो ये डिफरेंस किस साइड आ रहा है, किस साइड कम पड़ रहा है, ऑन द क्रेडिट साइड. सो सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे ना हम लोग, वी विल हैव, यहीं पे खोल देती हूँ, जस्ट वेट, नीचे में ही कर देती हूँ. अब क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वी विल हैव ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस अमाउंट 16,500, ठीक है, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस लेजर अकाउंट. ये अब कैसे आया, समझ में आया ना आपको, इन दोनों का डिफरेंस देखो, डेबिट एंड क्रेडिट का किस साइड कम पड़ रहा है वही डालेंगे हमारे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है. अब जर्नल एंट्री देखते हैं. टोटल ऑफ द कैश डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड फिगर ऑफ डिस्काउंट रिसीव वाज 5,100. ओके, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ओके, इसका ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, कैश डेबिट टू 15,100 एंड डिस्काउंट रिसीव, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव्ड शॉर्टकट लिख रही हूँ, क्रेडिट साइड में आएगा 5,100, ठीक है. पर आपने क्या किया, कैश में करेक्टली पोस्ट किया, ठीक है, बट आपने इस फिगर को डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, यही क्वेश्चन कह रही है. तो ये आपने करेक्टली पोस्ट किया एंड यहाँ पे कुछ पोस्ट नहीं किया, यही क्वेश्चन बोल रही है कि डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में कुछ पोस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट. अब इसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है, एंड हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एंट्री था इसको यहाँ पे ला के रख देंगे, ये डेबिट होगा. ओके, तो ये आपका हो गया
एक, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है आपका, ए चेक फॉर 19,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाज करेक्टली इंटर इन द कैश बुक बट वाज पोस्टेड टू कंट्रोल अकाउंट एज 9,100। ओके, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश आया या फिर बैंक जो भी, डेबिट 19,000 होना चाहिए था, और रिसीवेबल घटेगा आपका, रिसीवेबल घटेगा, क्रेडिट 19,000, बट आपने क्या किया, रिसीवेबल कंट्रोल होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कंट्रोल लिख लो, कंट्रोल, या कंट्रोल अकाउंट की बात कर रही है। तो आपने कैश अकाउंट में करेक्टली पोस्ट किया, ओ इट हैज गॉन, ओके, ठीक है, ये है। ओके, तो आपने बस रिसीवल को आई मीन सॉरी कैश को करेक्टली पोस्ट किया, ठीक है, पर रिसीवल कंट्रोल अकाउंट में आपने क्या कर दिया, रिसीवल कंट्रोल अकाउंट में आपने क्या किया, कितना डाल दिया है, इसको छोटा करना पड़ेगा, तो रिसीवल कंट्रोल में आपने डाला है 9100, ठीक है। अब आपका देखो डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा है, तो कितना से इक्वल नहीं हो रहा है, सस्पेंस के नाम से अकाउंट खुलेगा क्रेडिट साइड में, सो 19,000 माइनस कर दो 9100, यू विल हैव 9900 का डिफरेंस आ रहा है। अब करेक्शन करने के लिए क्या होगा, सस्पेंस को हम लोग करेंगे डेबिट, क्योंकि ये अभी क्रेडिट साइड में है, एंड यहाँ पे वापस से क्या लेके आएंगे हम लोग, ये कंट्रोल अकाउंट पेस्ट अमाउंट हो जाएगा 9900, क्योंकि हम लोग को रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को इंक्रीज करना है। तो ये आपका हो गया करेक्ट एंट्री। अब हम लोग को रिमेनिंग बैलेंस पूछ रहा है सस्पेंस अकाउंट का, कहाँ खुला सस्पेंस अकाउंट, ये रहा, ओके। अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस था। अब देखो फर्स्ट वाले 1 के लिए जो सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में जाएंगे और डिस्काउंट रिसीव के नाम से हम लोग डालेंगे अमाउंट 5100। अगेन सस्पेंस अकाउंट हमारे डेबिट साइड में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवेबल कंट्रोल के नाम से डालेंगे अमाउंट 9900, ठीक है। अब टोटल करो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 15,000, सो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 16,500, इधर भी इतना ही होगा 16,500, और डिफरेंस क्या चीज़ का है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका 1500। एक चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका सस्पेंस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस नहीं होता, ये टेम्प्रेरी अकाउंट है, वी नीड टू सेटल एज सुन एज पॉसिबल, ओके। ये कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट देख रहे हो, इट मीन्स देर इज सम मोर एरर, वी नीड टू फाइंड आउट एंड वी नीड टू करेक्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर करेक्शन, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, किधर आएगा, इधर आएगा, सो ब्रॉड फॉरवर्ड आपका आ जाएगा 1500, ठीक है। ये किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो अमाउंट 1500 ऑन द क्रेडिट साइड आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 18.8, ट्रायल बैलेंस ऑफ CA लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी डिड नॉट एग्री, ए सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर डिफरेंस, चेकिंग द इन द बुक कीपिंग सिस्टम रिवील्ड a number of error, which two of the following error would require an entry to suspense account as a part of process to correcting them, ओके। क्वेश्चन अगेन बोल रहा है जर्नल एंट्री वाला आपका टू डू शुड डू वाला, ठीक है। 18.8 पहले मैं वो लिख लेती हूँ, शुड डू आपका डिड डू, एंड लास्ट एंट्री होता है टू डू, ठीक है। ये आपका हो गया, छोटी छोटी तरह कर देती हूँ तो दिखेगा आप लोग को, ओके, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, 4,600 पेड फॉर ए मोटर वैन रिपेयर्स वाज करेक्टेड ट्रेडेड इन द कैश बुक बट वाज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। अब मोटर वैन रिपेयर्स का ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, मोटर वैन, शॉर्टकट लिख रही हूँ MB, ठीक है, रिपेयर्स डेबिट होगा अमाउंट 4600, ठीक है, एंड
कैश ये हमारा ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री में फिर से बोल रही हूँ, ठीक है 4600। अब पर आपने क्या किया, कैश में करेक्टली इंटर किया बट आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया मोटर व्हीकल एसेट को, मोटर व्हीकल एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट 4600। अब डेबिट साइड में कुछ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या खुलेगा, सस्पेंस एंड डेबिट, अमाउंट हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 896920 से। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को सस्पेंस अकाउंट को लाना होगा डेबिट साइड में, सस्पेंस आपका हो जाएगा सॉरी क्रेडिट साइड में 9200। और प्लान ये मोटर व्हीकल एसेट हम लोग को एंट्री नहीं करना था, ये गलती से उसको हम लोग ने घटा दिया है, ठीक है। अब बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, वापस से MB एसेट डालेंगे डेबिट एंड अमाउंट होगा आपका 4600। यहाँ पे आना चाहिए था MV रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स ये भी हो जाएगा आपका डेबिट अमाउंट 4600। ये आपका करेक्शन एंट्री हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। सो विच टू ऑफ द फॉलोइंग ईयर वी रिक्वायर टू एंट्री ए सस्पेंस अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ द ये सस्पेंस अकाउंट किस किस में खुलेगा क्वेश्चन ये बोलते। ऑप्शन ए तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखो बी, अगेन ये इंडिविजुअल की बात कर रही है, ठीक है। मैंने बोला ना एज्यूम करना कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रही है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप इसको ऐसे भी ओमिट कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको ओमिट करते हैं। मैंने ऊपर में भी दिखा दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोल रही है कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करती है तो आप इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं करोगे, इवन नहीं भी बोल देते भी कंसिडर नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन बोल देती है कि कंपनी नॉट मेंशन द कंट्रोल अकाउंट, या कंट्रोल अकाउंट मतलब कोई रिसीवेबल एंड पेएबल, तो उस केस में आपको इंडिविजुअल कंसीडर करना होगा, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका बी ऐसे भी नहीं होने वाला। सो थर्ड वाला में देखते हैं क्या है, 9500 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड, रेंट अकाउंट वॉज 5900। अब रेंट पेड कर रहे हो, रेंट एक्सपेंस हुआ, रेंट आपका डेबिट, अमाउंट क्या हो जाएगा 9500 एंड कैश जा रहा है भारत, आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट कितना से होगा आपका 9500, ठीक है पर आपने क्या कर दिया, डेबिट टू रेंट अकाउंट, ओके, रेंट अकाउंट में आपने अमाउंट क्या डाल दिया डेबिट में 5900, ठीक है। एंड कैश तो आपने करेक्टली इंटर किया क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, सो वी विल एज्यूम कि इट हैज़ अदर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन करेक्टली पोस्टेड। तो अब डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, सस्पेंस खोलेंगे, सस्पेंस आपका हो जाएगा डेबिट। अब अमाउंट देखो कितना से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, सो 3600 चाहिए, ठीक है। एंड सस्पेंस अब हमारा डेबिट साइड में है, नाउ इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस आपका क्रेडिट अमाउंट 3600, और रेंट को और इंक्रीज़ करना है तो रेंट आ जाएगा डेबिट साइड में आपका अमाउंट 3600, ओके। तो ये हो गया, ये भी आपका सस्पेंस खोल रहा है, तो आपका दो ऑप्शन ऐसे ही हो गया, ए एंड सी इज़ योर आंसर, ठीक है। एंड आपका फिर भी मैं डी भी दिखा देती हूँ, ये वही वाला है, ऊपर में किया था हम लोग ने, सेल्स रिटर्न हैज़ बीन डेबिटेड टू इन ईयर टू परचेज रिटर्न, ऊपर में किया हुआ है, आप लोग एक बार ऊपर देख लो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पता है एक ही ईयर को 10 बार घुमा के पूछेगा, बट बस आपको कंठस्थ रहना है कि इसका एंट्री क्या होता है, एक ही ईयर को आपको 10-15 बार घुमा के पूछेगा, वही सब ईयर रहता है, ठीक है, कुछ नया नहीं रहता है। तो आप एक बार ऊपर देख लो, ऊपर में भी एक ऑप्शन था, आप उसके थ्रू जा सकते हो। और डी में, ई में तो बोल रहा है कि एंट्री ही नहीं हुआ है, ठीक है, जब एंट्री ही नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ से खुलेगा, ठीक है। तो हमारा ए और सी आंसर हो गया। 18.9 सस्पेंस अकाउंट से डेबिट बैलेंस ऑफ 100 विच कुड दिस बैलेंस ड्यू टू, अब किसी का नहीं बैलेंस होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करके चल रहा है, और जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देखो डायरेक्ट ओमिट कर दो, आपका ए और बी यहीं से आपका हट गया, ए और बी क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रही है तो यहाँ पे ए और बी आपका ऑप्शन ऐसे ही हट गया ना। और सी और डी में देखते हैं, अंडर कास्टिंग द सेल्स डे बुक बाई 100, सेल्स डे बुक अंडर कास्ट कर रहे हो मतलब घटा हुआ है, मतलब उसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका एंट्री क्या होती है, सेल्स डे बुक के बढ़ाने के लिए सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, क्रेडिट सेल, इट मीन्स रिसीवेबल आपका डेबिट एंड सेल्स आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट कितना है 100 तो ये आपका यही करोगे तो आपका ऐसे करेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा नहीं ना, तो बच गया ऑप्शन डी, आपका वही एक आंसर है। अब कैसे हुआ वो देखते हैं, अंडर कास्टिंग परचेज अकाउंट बाई 100, यहाँ पे परचेज अकाउंट मीन्स, एक सेकेंड, परचेज अकाउंट
परचेज, ओके हाँ, परचेज अकाउंट यहाँ पे आपका परचेज डे बुक को नहीं बोल रहा है, बी केयरफुल, ठीक है, परचेज डे बुक को नहीं बोल रहा है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस, तो अंडरकास्टिंग परचेज अकाउंट बाई 100, परचेज अकाउंट मीन्स आपका परचेज अकाउंट अंडरकास्टिंग, परचेज बढ़ेगा तो डेबिट साइड में जाएगा, सस्पेंस, ओके। सो आपका परचेज अकाउंट कहाँ पे होता है, डेबिट साइड में, वो 100 से कम पड़ रही है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, तो परचेज बढ़ाने के लिए वो सस्पेंस अकाउंट वहाँ पे खुला होगा, क्योंकि परचेज हम लोगों ने कम दिखाया है, परचेज किस साइड होती है, डेबिट साइड होती है, तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खुला, अगर ये डेबिट, तो इसलिए परचेज को, इसको अब एडजस्ट करने के लिए परचेज को क्या करेंगे, डेबिट, और सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट, तो हमारा ये बैलेंस सेटल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, इसी कारण सस्पेंस अकाउंट खुल रही है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। सो क्वेश्चन 18.10, a suspense account was so a credit balance of 130, which of the following could be due to, okay, omitting sales from 130 from sales ledger, ठीक है। सो क्वेश्चन 18.110, आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में खुल रहा है 130, किसके कारण खुल सकता है वो बोल रहा है, इट मीन्स आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में होना पड़ा, ये होना पड़ा, ये आपका डिड्डू वाला एंट्री पूछ रहा है, डिड्डू वाला, ये आप जैसे यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो अगर क्वेश्चन लाइक बोलेगा कि सस्पेंस अकाउंट शो है डेबिट बैलेंस ऑफ 9200, किसके कारण खुल रहा है, तो इसके कारण खुल रहा है, हम लोग ये वाला एंट्री नहीं देखेंगे, टू डू वाला, डिड्डू वाला देखेंगे, किसके कारण खुल रहा है, ठीक है। तो ऑमिटिंग है सेल्स ऑफ 130 फ्रॉम सेल्स लेजर, ठीक है, तो यहाँ पे ओमिट सेल्स लेजर मतलब आपको रिसीवर लेजर को बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये इसमें क्या बोलते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी कहीं लिखा हुआ था ये चीज़, सो उसीलिए ये आपका फर्स्ट, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन इसी में हुआ होगा, आई थिंक, मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में, सो इसीलिए आपका रिसीवल यहाँ पे ओमिट हो रहा है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल एंट्री होता है रिसीवल डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, ठीक है, पर आपने क्या किया, रिसीवल ओमिट कर दिया, तो यहाँ पे सस्पेंस खुला होगा, सस्पेंस, एंड सेल्स जस्ट कितस, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे है, सॉरी सस्पेंस का बैलेंस कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, ये कहाँ पे खुल रहा है, डेबिट साइड में, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। रिकॉर्डिंग है परचेज ऑफ 130 ट्वाइस इन परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज किया आपने कुछ, परचेज डेबिट एंड मान लो कि कुछ कैश ही है, क्रेडिट करते हैं, तो परचेज को आपने 2 बार लिख दिया, ठीक है, परचेज को आपने 2 बार लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे लेते सब 130 है अमाउंट, ओके, तो 130 एंड इसका भी हो जाएगा 130, ठीक है। सो आपका आपने क्या किया, परचेज को डबल से एंट्री कर दिया, आई मीन डेबिट करके 260 दिखा दिया, और कैश आपका उतना ही रहा 130, तो देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रहा है आपका, तो क्या करना होगा आपको यहाँ पे सस्पेंस खुलेगा क्रेडिट साइड में, सस्पेंस क्रेडिट 130, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ था, मैंने दिखाई नहीं, 130 डाल दो, 130, ये आपका 130 एंड आपको ये 130, तो देखो हमारा सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुल रहा है, क्रेडिट साइड में, तो ये भी क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट सो है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 130, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है फेलिंग टू राइट ऑफ बैड डेब्ट 130, ये आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है, आपको फिर से ओरिजिनल एंट्री मारनी होगी, IRD डेबिट टू रिसीवल क्रेडिट करके, तो ये आपका ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ओमिट ही हो गया, तो इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही नहीं। रिकॉर्डिंग एन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 65 बाय डेबिटिंग द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, आपने उल्टा कर दिया, रिवर्स एंट्री कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस है, उसको आप क्रेडिट में दिखा रहे हो, और इसमें कैश जा रहा है वो डेबिट, आई मीन वो क्रेडिट होना चाहिए, आप उल्टा डेबिट करके बढ़ा रहे हो, तो जस्ट अपोजिट एंट्री है, रिवर्स कर दोगे तो आपका ये करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट हमारा नहीं खुलेगा, तो ऑप्शन हो गया बी आंसर।
18.11 a company has suspense account balance in trial balance of 560. It was discovered that discount allowed 700 has been debited to instead of credit to receivable control account. What is remaining balance on suspense account after this error has been adjusted for? Okay, so क्वेश्चन नंबर आपका 18.11 आपने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल कंट्रोल, डिस्काउंट अलाउड करोगे तो आपका रिसीवेबल घटेगा, क्रेडिट 700 एंड आपका ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है, ये ओरिजिनल एंट्री, डिस्काउंट अलाउड आपका हो जाएगा डेबिट 700, ठीक है। तो ये ओरिजिनल एंट्री हो गया, बट आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड तो रखा ही डेबिट में, ये ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि आपने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, ठीक है, आपने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका। तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं खुला, क्या खुल जाएगा, सस्पेंस, कितना अमाउंट से, क्रेडिट में डबल 1400, क्योंकि रिसीवेबल को घटाना था, आप उल्टे बढ़ा दिए, ठीक है, प्लस एक ही अकाउंट में प्लस माइनस हो रहा है, इसीलिए डबल इम्पैक्ट। तो अब यहाँ पे सस्पेंस आपका जाएगा ऊपर, सस्पेंस डेबिट 1400 उल्टा, एंड रिसीवेबल को वापस से क्रेडिट करना होगा अमाउंट 1400। अब सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना था आपका 560 क्रेडिट, अब डेबिट साइड में आ गया, एक मिनट इसका लेजर बनाते हैं तो आपको अच्छा से क्लियरली समझ में आएगा। सो सस्पेंस किधर है, क्रेडिट साइड में बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड आपका है 560, ठीक है, और आपका ये सस्पेंस अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में खुल रहा है, तो ये रिसीवेबल के नाम से डालोगे यहाँ पे 1400। अब एडजस्ट करो कितना बैलेंस बचता है, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना आएगा, 840 आएगा, ठीक है। सो 840 टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका 1400, इधर भी हो जाएगा 1400। अब ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इधर आ जाएगा, इट मीन्स इतना बैलेंस और बच रहा है आपका करेक्शन करने के लिए, तो रिमेनिंग बैलेंस क्वेश्चन जो पूछ रहा है 840 क्या हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। ऑलवेज टू द ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, इसको इधर लेना, इधर फिर क्रेडिट साइड में टिक मत लगा देना आप लोग, इसको इधर ला के डेबिट साइड आएगा, ये ध्यान देना ये चीज़ को, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। So question number 18.12 1.12 AMCO trial balance does not agree and therefore suspense account with debit balance of 3000 has been opened. Which of the following either could explain the difference? Okay, किस किस में सस्पेंस अकाउंट खुल रहा है, ये डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एक्चुअली मुझे लेट हो रही है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, सो डोंट माइंड। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ओके। कुछ समझ में नहीं आया कोई भी पोर्शन, ओके। तो आपका सस्पेंड अकाउंट का बैलेंस आपका दे रहा है 3000 डेबिट ओपन, ओके। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ए रिसीव ऑफ 3000 फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पेबल्स कंट्रोल अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ओके। कस्टमर से आप कैश रिसीव कर रहे हो, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट 3000 एंड रिसीवेबल घटेगा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट घटेगा आपका, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा 3000। बट आपने क्या किया, कैश को तो करेक्टली इंटर किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कैश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बट क्रेडिटेड टू पेबल अकाउंट बोल रहा है इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल, तो पेबल्स कंट्रोल अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट किया है आपने 3000। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, पेबल कंट्रोल अकाउंट को पहले आप डेबिट कर दो अमाउंट 3000 एंड क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब उसको क्रेडिट करें वापस से, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। सो सेकेंड क्या है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट ऑफ 1500 हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव आपका क्या होता है, इनकम, तो इनकम आया होगा तो क्या रिसीव किया होगा, कैश डेबिट अमाउंट 1500, आपने फिर इंटरेस्ट रिसीव किया होगा क्रेडिट अमाउंट 1500, ठीक है। बट आपने क्या किया है, कैश को तो रिकॉर्ड कर दिया है ट्रायल बैलेंस में, पर इंटरेस्ट रिसीव को भूल गए, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस टू मेक द डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल 1500।
सो नाउ आपका सस्पेंस अब उल्टा करेंगे, ये क्रेडिट साइड में तो इसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट एंड आपका यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ये आपका ओरिजिनल एंट्री आएगा, तो जाके आपका ये करेक्शन होगा। तो सस्पेंस खुली ना डेबिट साइड में। थर्ड क्या कहती है, मैं बताऊंगी, ठीक है, अभी आंसर कौन सा भी, जस्ट वेट, मैं सारा एक एक करके करवाती हूँ फिर बताती हूँ। इक्विपमेंट रिपेयर्स 3000 हैव बीन इनकरेक्टली कैपिटलाइज एज ए पार्ट एंड इक्विपमेंट। ओके, तो आपने इक्विपमेंट रिपेयर करवाया, तो रिपेयर हमारा क्या है, एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट कितना हो जाएगा 3000 एंड आपका इक्विपमेंट रिपेयर से कैपिटल पार्ट कैश है, अब जो भी जाएगा क्रेडिट आपका 3000, बट आपने क्या कर दिया है प्लांट एंड एसेट में इसको डाल दिया, प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्टकट डाल देती हूँ, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपने डेबिट कर दिया इसको 3000 एंड कैश करेक्टली इंटर हुआ है क्रेडिट, ठीक है 3000। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले इसको जो डेबिट किया है इसको आपको क्रेडिट करना होगा, क्योंकि प्लांट हम लोग परचेज नहीं किए हैं, ये इंडिकेट करता है कि परचेज किए हुए हैं। और रिपेयर्स को क्या करना होगा आपको डेबिट में लाना होगा 3000। तो यहाँ पे भी हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला। 1500 बैंक बैलेंस हैज बीन शोन इन ट्रायल बैलेंस एज ओवरड्राफ्ट 1500। तो बैंक बैलेंस आपका मान लो कि 1500 था, यहाँ पे इसका ये दो एंट्री नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ, उसको आपने ओवरड्राफ्ट दिखा दिया एज ए ओवरड्राफ्ट, मतलब उसको क्रेडिट दिखा दिया है। तो उसको वापस से करने के लिए क्या करना होगा, बैंक डेबिट अमाउंट हो जाएगा आपका 3000। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि बैंक आपका बढ़ रहा था, प्लस हो रहा था, आपने वापस से उसमें माइनस कर दिया, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस कर दिया, तो प्लस के बदला माइनस हो गया, डबल इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका यहाँ पे सस्पेंस खुल जाएगा। अब देखोगे ना आपका दो ट्रांजेक्शन में सस्पेंस खुल रहा है, एक ये वाले में एक ये वाले में, पर अमाउंट बोल रहा है कि ये 3000 डेबिट बैलेंस है सस्पेंस का, कौन करेक्ट करेगा, सस्पेंस अकाउंट आपका मान लो डेबिट बैलेंस साइड में है, तो ये क्रेडिट साइड वाला करेक्ट करेगा, तब जाके बैलेंस नील होगा, जीरो होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18.1 और क्वेश्चन है, नहीं लास्ट है 18.13। ऑन October 20 Axis Anco had a 400,000 25 cent ordinary share in issue. On 1 January 20X1 there was a right issue of 145 at a 1.50. Entry in the share premium account was omitted and error, and as a result the trial balance at 30 September 20X1 didn't agree. What balance would have been entered in the suspense account when it was opened? When it was opened मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। सो क्वेश्चन 18.13, ठीक है, तो आपने राइट इशू किया, ठीक है, देयर वाज राइट इशू ऑफ 145 शेयर, तो 400,000 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, देखो आप करके 400,000 का 1/5 करोगे यू विल गेट 80,000, ठीक है, तो 18,000 शेयर आपने इशू किया एज राइट। सो इसका एंट्री क्या होती है, बैंक आपका डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम आपका क्रेडिट, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में क्या होगा, 8,000 इशू कर रहे हैं, मैंने कैसे बोला 400,000 को डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि 1/5 में इशू हो रही है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, इंटू फेस वैल्यू क्या है शेयर की 225 सेंट, तो इंटू करेंगे 0.25 डॉलर में निकालने के लिए तो कितना अमाउंट आता है देखो, इंटू 0.25, तो ये आ गया $2,000 मुझे, ठीक है, 20,000 सॉरी। एंड शेयर प्रीमियम आपका निकालो 18,000 शेयर का इनटू कितना पे इशू किया आपने, इशू हैज़ बीन ऑन 1.50 माइनस कर दो 0.25, क्योंकि हमारा फेस वैल्यू से जितना ऊपर अमाउंट होगा वो हमारा शेयर प्रीमियम होगा। सो 1.50 माइनस 0.25 इंटू 80,000 100,000 आया मुझे। अब इन दोनों का प्लस होगा आपका बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा 120,000, ठीक है, ये 120,000। ओके, सो आपने ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, बट आपने क्या किया है ना, आपने क्या किया, एक मिनट, हाँ इसको मिला देंगे मुझे पहले। ओके, सो व्हाट यू डिड कि आपने देयर वाज राइट इशू ऑफ इतना इतना, द एंट्री ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट वाज ओमिटेड इन द ईरर, आपने ये एंट्री किया, ठीक है, ये वाला भी एंट्री किया, ठीक है, और शेयर प्रीमियम का एंट्री नहीं किया। यहाँ पे अब देखो डेबिट एंड क्रेडिट आपका इक्वल नहीं हो रहा, तो सस्पेंस खुलेगा, सस्पेंस क्रेडिट
तो अमाउंट हो जाएगा 100,000। अब यही इसको करेक्शन करने के लिए, अब ये करेक्शन का एंट्री नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ओमिट हो गया, तो जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा उसका बैलेंस क्या था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको करेक्शन वाला एंट्री नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जब सस्पेंस अकाउंट खुला, अब सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे खुला ना, तो आपका बैलेंस क्या था, तो 100,000 ऑन द क्रेडिट साइड, सो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को रिव्यू करके एक बार और देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ तब भी नहीं समझ में आया, प्लीज़ 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 डू कमेंट मी, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। और प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड लोग में शेयर करो, और मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना, ठीक है। तो सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।